Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 4 of Educational Technology and ICT, that is the ICT in Education, and we had talked about the concept, need and scope of information and communication technology, and today we are going to discuss about the ICT inputs in education. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिए। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनपुट्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वी मस्ट थिंक बियॉन्ड सिंपल गैजेट्स। मीन्स जो ICT है, ICT इनपुट्स है, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज जो कि यूज़ किए जाते हैं इन एजुकेशनल सिस्टम, जो कि सपोर्ट करते हैं लर्निंग को। एंड ये जो इनपुट्स हैं, दीज इनपुट्स इंक्लूड टेक्नोलॉजी, पीपल, कंटेंट, पॉलिसीज़ एट्सट्रा, जो कि क्रिएट करते हैं एक तरीके का फंक्शनल डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। So we can say जो ICT inputs है, they act as a supply chains of knowledge. Just like factory need raw materials, machines, workers and management to produce goods. Similarly, जो education है, that needs ICT inputs to produce learning outcomes. ठीक है? Now let's discuss in detail each component of each component of ICT inputs. First जो component है, that is the hardware inputs. These are also called as the physical infrastructure inputs. As you know, जो hardware inputs हैं, these are basically the physical devices और technological equipment जिनको यूज़ किया जाता है in the digital education environment. एंड ये जो डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस अलो करता है स्टूडेंट्स, टीचर्स को टू एक्सेस, क्रिएट एज वेल एज टू शेयर इंफॉर्मेशन। And without these hardware inputs, जो digital education है, that cannot take place because there would be no physical interface between the humans and technology. एंड ये जो हार्डवेयर इनपुट्स हैं, इनके हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट जो है, दैट आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस और प्राइमरी लर्निंग इंटरफेसेस। ये हमें मेन हार्डवेयर इनपुट्स देखने को मिलते हैं और मेन डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ करते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू इंटरेक्ट विद डिजिटल लर्निंग सिस्टम्स। लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स such as Apple iPad, Chromebooks produced by Google smartphones. So these are all the examples of hardware inputs or computing devices. And ये जो devices है, these devices allow users to attend online classes, access digital libraries, complete assignments, collaborate with classmates, run educational software, etc. And in modern classrooms, जो students हैं, they often use these devices as a personal learning terminals. Second जो type है hardware input का, that is the display and interaction tools. ये जो devices, ये जो tools है, these tools help teachers to present information visually and interactively in classrooms. Like for example, जो common examples है display and interaction tools के, that are like interactive whiteboards और smart boards, LED projectors, document cameras और visualizers. And ये जो interactive boards है, these interactive boards allow teachers to write digitally, show videos and presentations, annotate documents in real time, as well as जो कि allow करते हैं students को to interact with the screen. So ये जो tools हैं, these tools also make teaching more visual, engaging and collaborative. थर्ड जो टाइप है हार्डवेयर इनपुट्स का, दैट इज़ द नेटवर्किंग हार्डवेयर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एज यू नो, जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं, दे हैवीली डिपेंड ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी। एंड जो नेटवर्किंग हार्डवेयर है, वो हमें एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी। लाइक बहुत सारे networking hardware devices जो हैं, that are used for internet connectivity, like routers, network switches, fiber optic cables या satellite receivers. So ये जो devices हैं, these devices create a communication network
जो कि कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को टू द इंटरनेट एंड टू द ईच अदर। लाइक फॉर एग्जांपल रोटर्स जो है दे डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट सिग्नल्स, स्विचेस जो है दे मैनेज कम्युनिकेशन विद इन स्कूल नेटवर्क, या जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है दे कैरी डेटा एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। सो विदाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं दे कैन नॉट फंक्शन। फोर्थ जो टाइप है हार्डवेयर इनपुट्स का दैट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो है एज यू मे नो दीज आर द एडिशनल टूल्स जो कि कनेक्ट किए जाते हैं टू कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू एनहेंस इट इज फंक्शनैलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग लेसन्स, या माइक्रोफोन्स जो है इनको यूज़ किया जाता है फॉर पॉडकास्ट्स एंड ऑनलाइन लेक्चर्स, या स्कैनर्स जो है इनको यूज़ किया जाता है फॉर डिजिटाइजिंग प्रिंटेड मटेरियल्स, या 3D प्रिंटर्स जो है इनको यूज़ किया जाता है इन इनोवेशन लैब्स और मेकर स्पेसेस। सो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस अलो स्टूडेंट्स टू डिज़ाइन एंड क्रिएट फिजिकल मॉडल्स यूजिंग डिजिटल टूल्स, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। फिफ्थ जो टाइप है हार्डवेयर इनपुट्स का दैट इज़ द स्टोरेज इनपुट्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आल्सो जनरेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, एंड फॉर दैट जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं वो हमें एसेंशियल देखने को मिलता है टू स्टोर दैट डिजिटल इंफॉर्मेशन, लाइक कोर्स मटेरियल्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, या रिसर्च डेटाबेसेस, एंड सम स्टोरेज इनपुट्स जो है इनपुट डिवाइस जो है दैट इंक्लूड्स द क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल सर्वर्स या डेटा सेंटर्स, एंड क्लाउड सर्विसेज जो है दैट आर आल्सो अवेलेबल जिनके थ्रू जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है मतलब ऑन द इंटरनेट। एंड ये जो क्लाउड सर्विसेज है दीज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज सच एज अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि अलो करते हैं स्कूल्स को टू स्टोर और टू एक्सेस डेटा सिक्योरली फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट इनपुट्स। हार्डवेयर इनपुट्स जो है दे कैन नॉट अलोन प्रोड्यूस लर्निंग, वाइल जो सॉफ्टवेयर और जो डिजिटल कंटेंट है वो हमें एसेंशियल देखने को आल्सो मिलते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल एजुकेशनल मटेरियल एंड फंक्शनलिटी। एंड ये जो सॉफ्टवेयर इनपुट्स है दीज एक्ट एज ए ब्रेन ऑफ द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। और जो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट इनपुट्स के दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इट कंट्रोल्स एज वेल एज इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अलो करता है यूजर्स को टू इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक ओएस, एंड्रॉयड, Chrome OS, so these are all the examples of system software or operating system. And ये जो operating systems हैं these operating systems manage files and data, applications, device, hardware, network connections, and ये जो system software हैं this act as a foundation upon which all educational software runs. Second जो type है software and content input का that is the application software. Application software जो है these software allow users to perform specific tasks, like for example if we talk about learning management systems LMSs, जो LMS platforms हैं वो help करते हैं teachers को to organize as well as to deliver courses online, like for example if we talk about Google Classroom, Module, Canvas, so these are all the examples of application software जो कि allow करते हैं teachers को to upload courses, materials, assign homework, conduct quizzes as well as track students' progress. And similarly productivity tools जो है they are also the examples of application software, because जो productivity softwares है they also support collaboration as well as content creation, like for example Microsoft 365, Google Workspace. So these are the examples of प्रोडक्टिविटी टूल्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स यूज़ करते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। सिमिलरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर लर्निंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल जियोजेब्रा जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर मैथमेटिक्स, या वर्चुअल लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर जो है उनको यूज़ किया जाता है फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स, या ड्यूओलिंगो जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सो ये जो प्रोग्राम्स है, दीज प्रोग्राम्स और द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स थ्रू इंटरैक्टिव सिमुलेशंस एज वेल एज थ्रू एक्सरसाइजेस। थर्ड जो टाइप है सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट इनपुट का, दैट इज़ द डिजिटल कंटेंट और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। डिजिटल कंटेंट जो है दिस प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स इन द electronic form, like for example if we talk about e-books, online articles, lecture videos, educational podcasts या open courseware। सो ये जो डिजिटल ये जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं दीज आर फ्रीली एक्सेसिबल, इनको फ्रीली एक्सेस किया जा सकता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक खान एकेडमी, जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशनल वीडियोस एंड एक्सरसाइजेस विच मेक्स लर्निंग मोर एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है। एंड फोर्थ जो टाइप है सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट इनपुट का, दैट इज़ दी AI इनपुट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज़ नाउ बिकमिंग ए पावरफुल कंपोनेंट especially of ICT inputs, and artificial intelligence technologies जो हैं that includes the large language models, AI tutors, adaptive learning systems, automated grading systems। और बहुत सारी organizations जो है like OpenAI, they also develop AI systems that are capable of assisting students in the learning। एंड ये जो सिस्टम्स है these systems can answer questions, they can explain difficult topics, they can personalize learning pathways as well as they can also generate practical exercise। So this is how जो AI है that also makes education more adaptive and personalized। ठीक है। I hope it is also clear to you। Now talking about the human inputs, these are also called as the intellectual capital inputs। जो टेक्नोलॉजी है दैट के नॉट अलोन ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, बट जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए आल्सो ज़रूरत पड़ सकती है, दैट आल्सो नीड ह्यूमन एक्सपर्टाइज, वो हमें आल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन। एंड ये जो ह्यूमन इनपुट्स हैं इनको हम समझ सकते हैं पीपल जो कि डिज़ाइन, जो कि मैनेज और जो कि यूज़ करते हैं ICT सिस्टम्स को। एंड जो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं ह्यूमन इनपुट्स के, दैट आर लाइक ICT लिटरेट टीचर्स। जो टीचर्स हैं उनके पास एक्सपर्टाइज, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, हाउ टू दे शुड नो द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, दे शुड नो हाउ टू डिज़ाइन इंटरैक्टिव लेसन्स एज वेल एज they also have knowledge to guide students in online learning। So ICT literate teachers जो है along with technology they can use technology into their pedagogical strategies rather than they can only use it as a simple presentation tool। सेकेंड जो टाइप है ह्यूमन इनपुट का, दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट स्टाफ। Educational institutions जो हैं today they heavily relies on the IT professionals to maintain systems। and ये जो स्पेशलिस्ट्स हैं, ये जो टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ हैं जो कि मैनेज करते हैं नेटवर्क सर्वर्स, साइबर सिक्योरिटी, डिवाइस मेंटेनेंस। सो विदाउट द technical support staff, the digital learning इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वुड क्विकली फेल। ठीक है। थर्ड जो है दैट इज थर्ड जो टाइप है ह्यूमन इनपुट का, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स जो है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ एजुकेशनल कंटेंट को इनटू द स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स, जो कि अप्लाई करते हैं लर्निंग थ्योरीज को टू डिज़ाइन इंटरैक्टिव कोर्सेज, मल्टीमीडिया लेसन्स, एडेप्टिव लर्निंग पाथ्स। एंड इनका जो रोल है दैट इज़ टू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है।
फोर्थ जो टाइप है ह्यूमन इनपुट का, दैट इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। ये जो प्रोफेशनल्स हैं, दीज प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस एजुकेशनल कंटेंट और मीडिया सच एज एजुकेशनल वीडियोज, एनिमेशंस, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, सिमुलेशंस। सो ये जो हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट है, दिस इम्प्रूव्स द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कंप्रहेंशन। फिर जो टाइप है ह्यूमन इनपुट का, दैट इज द स्टूडेंट डिजिटल लिटरेसी। जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर देमसेल्व्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनपुट। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास आल्सो नॉलेज होनी चाहिए। दे मस्ट नो हाउ टू सर्च इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्सिबली, हाउ टू एवेलुएट ऑनलाइन सोर्सेज, हाउ टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, एज वेल एज हाउ टू कोलैबोरेट डिजिटली। सो ये जो डिजिटल लिटरेसी है, दिस एंश्योर्स दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नो द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सेफली एज वेल एज प्रोडक्टिवली। ठीक है। देयर आर ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एंड पॉलिसी इनपुट्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो large ICT systems हैं, they also require strong financial support and policy frameworks. And ये जो inputs हैं, these inputs mainly operate at the institutional and government level. And जो types हैं financial and policy inputs के, that are funding and budgeting. As we know, जो schools हैं, they need financial resources to purchase devices, maintain networks, upgrade softwares, train teachers. So ये जो फंडिंग है, दिस में कम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशनल बजट्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। एंड विदाउट सस्टेनेड फंडिंग जो ICT सिस्टम्स हैं, दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सेकेंड जो टाइप है फाइनेंशियल एंड पॉलिसी इनपुट का, दैट इज द ICT पॉलिसी एंड करिकुलम। जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्रिएट करते हैं पॉलिसी जो कि गाइड करते हैं हाउ द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इन द एजुकेशन। And ये जो policies हैं, these policies also determine the standards of technology for schools, digital curriculum guidelines, teacher training requirements. So like जो national education ministers हैं, they often design ICT integration frameworks. So this is how जो government policies हैं, they also plays a very important role in guiding how technology should be used in the education. थर्ड जो टाइप है फाइनेंशियल एंड पॉलिसी इनपुट का, दैट इज द इथिकल एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। जो डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं, दे मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट द यूजर डेटा एंड दे मस्ट एंश्योर द इथिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो है इथिकल एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के, दैट आर लाइक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स, स्टूडेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉज या डिजिटल सिटीजनशिप गाइडलाइंस। सो ये जो डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं, दे शुड प्रोटेक्ट द यूजर डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल रेगुलेशंस सच एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये एस्टेब्लिश करते हैं, जो लॉज है ये एस्टेब्लिश करते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट हाउ डिजिटल डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड। सो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, सच फ्रेमवर्क्स आल्सो प्रोटेक्ट बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सिस्टम अप्रोच। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, दैट आल्सो यूजेस दिस सिस्टम अप्रोच टू अंडरस्टैंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स। एंड ये जो मॉडल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल है, इसके हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है, दैट इज द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज जो है, ये हमें मेन रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन दिस सिस्टम, और जो कि एंटर किए जाते हैं इन दिस सिस्टम, लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, या डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया। ठीक। सेकेंड जो स्टेज है, दैट इज़ द प्रोसेस स्टेज। प्रोसेस स्टेज जो है, इट रेफर्स टू लर्निंग एक्टिविटीज़ जो कि यूज़ करते हैं दीज रिसोर्सेज को, लाइक स्टूडेंट जो है वो यूज़ करता है लैपटॉप को टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, टू कोलैबोरेट विद क्लासमेट्स, टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड स्टेज जो है, दैट इज़ आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज जो है, इट रेफर्स टू द रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस, लाइक फॉर एग्जांपल
improved knowledge या critical thinking skills या digital collaboration abilities. So thus ये जो ICT inputs हैं they ultimately produce educational outcomes. ठीक है. Now at conclusion we had learned that कि जो analogy है of cooking, this explains the relationship between different ICT inputs. Like जो hardware inputs है they solve the they include the if we understand it in terms of cooking, in terms of analogy of cooking, hardware devices जो है इनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज द स्टोव्स एंड किचन इक्विपमेंट, या जो सॉफ्टवेयर हैं इनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज रेसिप, और जो टीचर है ही इज़ द चेफ एंड स्टूडेंट जो है दे आर द डिनर्स लर्निंग फॉर द एक्सपीरियंस. एंड इवन इफ जो स्कूल है दैट हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड हार्डवेयर, जो learning है that will not happen unless जो teachers है they should know how to use technology, they should have highly quality digital content as well as जहाँ student जो है they should actively participate. So when these inputs जो है all these inputs जो है when they work together this leads to the high quality educational experience. ठीक है. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.